Hello friends, I'm Payal here and welcome to our new channel Banking Life Payal 2. So friends, today I am starting the series of reasoning section. So the topic is how to attempt reasoning section in pre-examination, bank PO pre. So I am taking a mock test of Olive board and I am taking a bank clerk mock test here. Usually the sequence I prefer in bank PO pre-examination and bank clerk pre-examination, it is same. So 35 questions are there in reasoning section, and which we have to complete in 20 minutes. So there is sectional timings, and these are given in both English and Hindi. You can select the language in which you are comfortable with. So first of all, I'm gonna mark for review those questions which are easy. I try to complete at least 20 questions within 9 minutes, so or 8 minutes maximum I try to complete them, because these are easy question and if your speed is good you can do them. So generally the questions which come in the reasoning pre-section in miscellaneous, these are direction questions, direction sense, blood relations, or coded questions, and the inequality questions, like as you can see here, question number 19, these are inequality questions. So these type of questions come, and this one is the direction sense. So I will mark for review first the miscellaneous easy questions, and I will do them first, and yeah, and there is the coding questions. So this one is easy coding, there can be tough coding questions. So you can see if there are tough questions in these also in miscellaneous, you can skip them for the last, and you can do them at the last. Then I will do the puzzles. In puzzles also I will select those puzzles in which I am comfortable, and so I will do those puzzle first. I generally do the tabular puzzles which are in table form, or year puzzles, age puzzles, and the floor based puzzles. So I'm gonna do them first, and at the last I will do the puzzles related to sitting arrangement, linear sitting arrangement. Circular sitting arrangement is kind of easy, and linear sitting arrangement is tough. And when the question is like we don't know the number of persons in the sitting arrangement, and that type of question I do generally at the last, okay, because it is most time consuming. So this is my sequence that I generally prefer in reasoning section. So you can do puzzles in the beginning also, because there can be some situations in which you completed the puzzle, but there is only 30 seconds left and you can't do the questions. So there can be those situation also. And if your speed is good, you should do the puzzle at the last. If your speed is not that good, you should do the puzzles in the beginning, and those puzzles which are easy. Okay, so it's up to you. And that was my sequence, my strategy. So that was all for today. एंड अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में बैंकिंग लाइफ फाइल में। और आज मैं रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज का जो पहला टॉपिक है रीजनिंग का है वो है कि हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन इन प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में बैंक के जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, क्या सीक्वेंस। ये नहीं कि पेपर मतलब दिखा आपने मतलब स्टार्ट कर दिया सीधा क्वेश्चंस करने। तो एक स्ट्रेटजी होती है जो फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपके मतलब 35 क्वेश्चंस जैसे इसमें दे रखे हैं कि 35 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 20 मिनट्स में करने हैं, तो वो पूरे हो जाएं, ठीक है। तो मैं मैथ्स का सेक्शन स्किप कर रही हूँ ताकि रीजनिंग पे ले जाऊँ आपको सीधा। और स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन। तो सबसे पहले मैं इजी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ, जो मिसलिनियस के, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गए नंबर के, और इनमें क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन सेंस के आ जाते हैं, ब्लड रिलेशंस के आ जाते हैं, और इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिलॉजिज्म भी आता है, और रिवर्स सिलॉजिज्म ज़्यादातर नहीं आता। और आजकल क्या है कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे रीजनिंग सेक्शन में, क्लर्क में खासकर। और अब तो ऐसा ट्रेंड हो गया कि पीओ में भी नहीं आ रहे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनपुट आउटपुट की भी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो और
एक होते हैं कोडिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं। कोडिंग इसमें जो आती है वो इजी वाली आती है, एक टफ़ वाली भी होती है, वो जनरली मेंस में आती हैं। और तो कोडिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आप सबसे पहले उनको भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में, मतलब मैक्सिमम 8-9 मिनट में मैं 20 क्वेश्चंस तो कर लूँ पहले, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पजल्स के दे रखे हैं। इनमें से भी ना मैं पहले वो पजल्स करूँगी जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे कि मुझे टैबुलर वाले पजल्स ईजी लगते हैं, टेबल वाले टैबुलर फॉर्म में, या जैसे कि एज वाइज वाले हो गए, ईयर वाले हो गए, और फ्लोर बेस्ड पज़ल हो गए, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट वाले पज़ल्स जो होते हैं वो मैं लास्ट में करती हूँ, बाकी सारे पज़ल्स करने के बाद। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अब जैसे ये पज़ल दिखने में लंबा लग रहा है बट ये इजी है, तो आप एक बार देख लीजिए कि पज़ल्स कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि पज़ल थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो वो टफ़ होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक बार ऊपर ऊपर से फटाफट रीड कर लीजिए कि आपको पहले कौन से पज़ल्स करने हैं, ठीक है। तो जो सर्कुलर वाले होते हैं वो जनरली ईजी होते हैं सिटिंग में, तो पहले मैं उनको करती हूँ। लीनियर वाले जो होते हैं वो बाद में करती हूँ मैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि find out the number of persons which are sitting in this row and there are certain number of persons sitting in this row, find out them. So ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं जनरली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। और कई बार ऐसा क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप पजल्स कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में तो आपका पज़ल बन जाता है लेकिन सिर्फ 30 सेकंड रह गया, 1 मिनट रह गया, आप मतलब क्वेश्चंस नहीं कर पाए उस पज़ल के। पज़ल तो बन गया आपका, आपने पूरा बना दिया, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाए, तो आपके 5 क्वेश्चंस तो ऐसे छूट के आपका बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। और टाइम भी वेस्ट होता है फिर 4-5 मिनट। तो क्या करना चाहिए, आप पहले पज़ल्स कर सकते हैं जिन बच्चों की स्पीड मतलब अगर अच्छी है तो वो बाद में कीजिए, और जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है पज़ल्स की वो पहले कर सकते हैं, ताकि आपका पज़ल्स एट द एंड छूटे ना, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मतलब कैसे ठीक लगता है। ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते रहिए मेरा चैनल, और धन्यवाद।